नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीधे आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। रणदीप सुरजेवाला। इलीगल बेटिंग, मैच फिक्सिंग, जिसका आंकलन लगभग 700 करोड़ रुपया हमारी एजेंसीज के द्वारा किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, उसमें संलिप्त थे और देश छोड़कर भाग गए। अब यह खुद विदेश मंत्री ने माना है कि श्री ललित मोदी उनसे न केवल उनसे जान पहचान थी, परंतु टेलीफोन पर उनसे वार्तालाप अक्सर किया करते थे। शायद इसी के चलते देश की विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने यूपीए सरकार के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उन सारे कम्युनिकेशंस को जो यूपीए की सरकार में तब के वित्त मंत्री माननीय पी चिदम्बरम जी ने भारत सरकार की ओर से यूनाइटेड किंगडम की सरकार को लिखकर दिए थे, और यहां तक कि जून 2013 में एक निजी बैठक में भी भारत सरकार की ओर से पी चिदम्बरम साहब ने औपचारिक रिक्वेस्ट की थी कि ललित मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए भारत में उनका प्रत्यार्पण किया जाए। शायद इसीलिए मौजूदा विदेश मंत्री ने उन सारे आदेशों को ओवररूल कर दिया ताकि ललित मोदी जी पर देश के कानून के मुताबिक मुकदमा ना चलाया जा सके। देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? ललित मोदी का न केवल माननीय सुषमा स्वराज जी से सीधा जुड़ाव, उनके परिवार से क्लाइंट काउंसिल रिलेशनशिप, उनके परिवार के सदस्यों से ईमेल्स का आदान प्रदान, उनके परिवार के सदस्यों को दाखला और दूसरी चीजों में मदद दिलवाने में साझेदारी थी। परंतु अब ऐसा भी लगता है कागजों और दस्तावेजों से कि श्री ललित मोदी के संबंध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह से भी हैं। श्री अमित शाह से भी हैं। May I very briefly recapitulate it in English before we take you to some documents that we have. Incontrovertible facts, documents and details of Modi Gate scandal emerging since yesterday now reflect not only active complicity of India's External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj, but also point towards the entire BJP government aiding and abetting a fugitive of Indian law, perhaps with the tacit approval of none less than the Prime Minister himself. Shri Lalit Modi, who is an accused in a 700 crore rupees money laundering hawala illegal betting case, was not only a known associate of the External Affairs Minister, but also admittedly, as admitted by her, spoke to her on telephone on a number of occasions. Is that the reason why Srimati Sushma Swaraj overturned the communications sent by the then UPA government through the then Finance Minister Shri P. Chidambaram
asking UK government to take action against Shri Lalit Modi for gross violation of law and for criminal offences committed in India and consequent repatriation to India. For a Prime Minister who single-handedly runs the External Affairs Ministry with the Foreign Affairs Minister playing a second fiddle, it is hard for us to believe, it is hard for a person with reasonable conscience to believe that the Honourable Prime Minister did not know the active help being extended to a non-fugitive of Indian law and an absconder of law by the External Affairs Minister. Not only does Shri Lalit Modi has a long client-counsel relationship, a friendly relationship with the family of Shrimati Sushma Swaraj, but it also now appears that there is a relationship, contours of which must be disclosed by Prime Minister and BJP President with both of them. Shockingly, it is unheard of that External Affairs Minister of a country calls a foreign envoy, calls head of a parliamentary committee of a foreign country to help a criminal. It is also unprecedented that written communications and emails established a quid pro quo in the past with the minister's family and the known fugitive. It is also painful and shocking and stunning to know that a member of the family of External Affairs Minister appears as a counsel in a passport confiscation case before two different courts in India, and at the same time External Affairs Minister intervenes to secure travel documents for the same fugitive from a foreign country. It is also deeply painful to note that while overruling existing inter-country communications which warrant that such a fugitive should be acted against in a foreign country and be repatriated for facing the Indian law. सुषमा स्वराज के बहाने कांग्रेस ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है कि प्रधानमंत्री चला रहे हैं विदेश मंत्रालय और उनके एक सहयोगी के तौर पर काम करती हैं सुषमा स्वराज। प्रधानमंत्री की सहमति से की गई मदद। कांग्रेस ने आरोप लगाया है ललित मोदी के मामले पर, साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्रालय चला रहे हैं और प्रधानमंत्री की सहमति से ही मदद की गई है। साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी आरोप लगाया है कि उनका भी संबंध ललित मोदी से है। तो अब सुषमा स्वराज के मामले पर, सुषमा स्वराज ललित मोदी विवाद पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भी घेर लिया है और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए यह कह दिया है कि विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री चला रहे हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री के चलाने तक की बात यहां पर कह दी है और खुद चलाते हैं विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री ललित मोदी। ललित मोदी पर हमने कार्रवाई की थी, ये भी कहा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर सुषमा स्वराज ललित मोदी के इस पूरे विवाद पर रणदीप सुरजेवाला ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं। प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में घसीट लिया है, कहा है कि विदेश मंत्रालय वो चला रहे हैं और संबंध भी बताए हैं। यहाँ पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी संबंध क्या हैं। ललित मोदी से ये सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा शक होता है कि बीजेपी अध्यक्ष के भी संबंध ललित मोदी से हैं। तो कांग्रेस अब हमलावर हो रही है सुषमा स्वराज ललित मोदी के मुद्दे पर और आगे बढ़ते हुए सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग तो पहले से कांग्रेस की तरफ से होती आ रही है, लेकिन अब
सुषमा स्वराज ललित मोदी के विवाद पर प्रधानमंत्री पर हमला कांग्रेस की तरफ से हुआ है और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी यहां पर वार करते हुए कहा है कि अमित शाह ललित मोदी के भी संबंध हैं, इस तरह से प्रतीत होता है। और प्रधानमंत्री की क्या सहमति से मदद की गई, ये सवाल उठाते हुए कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री की सहमति से मदद की गई। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह के आरोप उन पर लगाए हैं, सुनिए। मित्रों, स्पष्ट दस्तावेजों, तथ्यों और कागजातों से अब यह साफ है कि मोदी गेट स्कैंडल में न केवल देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की संलिप्तता साफ और जग जाहिर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार सारे तंत्र के साथ कानून के एक भगोड़े और काला धन बाहर ले जाने वाले व्यक्ति की मदद में लगी थी, ये अब साफ हो गया है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परोक्ष सहमति तथ्यों और दस्तावेजों से और तिथियों से नजर आती है। श्री ललित मोदी जो एक मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, इलीगल बेटिंग, मैच फिक्सिंग, जिसका आंकलन लगभग 700 करोड़ रुपया हमारी एजेंसीज के द्वारा किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, उसमें संलिप्त थे और देश छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सहमति से मदद की गई, ऐसा लगता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? श्री ललित मोदी जो एक मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, इलीगल बेटिंग, मैच फिक्सिंग, जिसका आंकलन लगभग 700 करोड़ रुपया हमारी एजेंसीज के द्वारा किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, उसमें संलिप्त थे और देश छोड़कर भाग गए। अब यह खुद विदेश मंत्री ने माना है कि श्री ललित मोदी उनसे न केवल उनसे जान पहचान थी, परंतु टेलीफोन पर उनसे वार्तालाप अक्सर किया करते थे। शायद इसी के चलते देश की विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने यूपीए सरकार के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उन सारे कम्युनिकेशंस को जो यूपीए की सरकार में तब के वित्त मंत्री माननीय पी चिदम्बरम जी ने भारत सरकार की ओर से यूनाइटेड किंगडम की सरकार को लिखकर दिए थे, और यहां तक कि जून 2013 में एक निजी बैठक में भी भारत सरकार की ओर से पी चिदम्बरम साहब ने औपचारिक रिक्वेस्ट की थी कि ललित मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए भारत में उनका प्रत्यार्पण किया जाए। शायद इसीलिए मौजूदा विदेश मंत्री ने उन सारे आदेशों को ओवररूल कर दिया